Hello students, today our topic of discussion is time series analysis. Now, as the name suggests, here we are going to deal with time. Series here means any kind of data. Analysis means we are going to analyze data with respect to time. So what is time series analysis? So time series analysis is the analysis of data with respect to time. ये डाटा किस प्रकार का हो सकता है? ये बिजनेस डाटा हो सकता है रिलेटेड टू प्राइसेस, रिलेटेड टू नेशनल इनकम, related to population, या any kind of production, consumption, export, import, sales, profit, any kind of data. So time series analysis deals with the data. Now we collect data for certain purposes, means when we deal with data, one variable is dependent and another is independent. So when we are going to find out x with respect to y, यानी कि here y is independent and x is dependent. So this x can be sales, production, profit, or this y is time. So we are going to study x variables with respect to time, that is independent variable. For example, when we study graphs, on x-axis, if we take time, and on y-axis any variable, maybe sales. So over the period of time, if we see the sales are increasing. So here with respect to time, what we are saying, that sales are increasing. So time series relates to data. Which data? That we calculate, that we observe over the period of time. For example, here over the period of time from 2001 to 2010, if we are watching what is the pattern of sales in rupees thousand. For example, in 2001, in a particular business, if sales is of rupees 15,000, in 2002 it increases to 20,000, then 30, 33, and we can see with the help of a chart also over the period of time what's happening to the sales. Sale is increasing, then it starts decreasing, then again it increased, then again it decreased, then again increased, and then increased to manifold. So what is this? This is the time series analysis, that we are analyzing our sales over the period of time. Now question arises, why we study time series? What is its utility? What is its need? When we want to do future predictions, so we can analyze present and past time series, and on the basis of that we can predict the future. Similarly, we can take lessons from our past, that what is the past behavior of a particular business or enterprises and what precautions should be taken in the future. Similarly, we know in economy faces cyclical fluctuations. Similarly, in business and in trade, we face cyclical fluctuations. Sometimes there is a boom condition, sometimes there is a depression, sometimes there is a recovery. So these four phases of business cycles can also be seen with the help of time series analysis, because that happens over a period of time. Similarly, if we want to make appropriate comparisons, now what kind of comparisons? For example, we can compare two different time periods with each other and make predictions or make analysis. Then we can also analyze the economic variables. What kind of economic variables? Like national income, export, import, prices, output. These all economic variables can also be analyzed with the help of
time series analysis. Government can make decisions, make policies, businessmen, business houses can take decisions according to the डाटा. तो आज के अगर हम प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो डाटा की बहुत वैल्यू है. और टाइम सीरीज क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाटा को ही एनालाइज करती है. एंड टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ डाटा साइंस. जब डाटा को एनालाइज किया जाता है, इवन एक सिंपल से सिंपल छोटे से छोटे बिजनेस में भी डाटा को एनालाइज किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके अकॉर्डिंगली ही बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं. तो टाइम सीरीज एनालिसिस को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट कम्स द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. तो टाइम सीरीज के जो चेंजेस होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज सेकुलर ट्रेंड, देन सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस एंड इरेगुलर वेरिएशंस. अब वन बाय वन अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले सेकुलर ट्रेंड क्या होता है. सेकुलर ट्रेंड को जनरली हम लॉन्ग रन में देखते हैं. यानी कि फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग रन में अगर देखें कि कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि कंजम्पशन की टेंडेंसी है बढ़ने की, ठीक है जी. तो ये हमारा जो ट्रेंड है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकुलर ट्रेंड. और ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में है, ए इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. तो इसको हम बोलते हैं लीनियर ट्रेंड. अब आप सोचोगे कि क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है. नो, इट कैन बी डिक्रीजिंग ऑल्सो. तो ये फॉर्म भी हो सकती है हमारे लीनियर ट्रेंड की. क्लियर. तो जब हम स्ट्रेट फिट में बात करते हैं तो ये लीनियर ट्रेंड कहलाता है. तो जो सेकुलर ट्रेंड है ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और ये पैराबोलिक फॉर्म में भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि ये लीनियर फॉर्म में ही हो, यानी कि ये नॉन लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है. तो सेकुलर ट्रेंड में हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी टाइम सीरीज में चेंजेस देखते हैं. तो ये हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम किस में चेंज देख रहे हैं, अपने कंजम्पशन में. तो ये कंजम्पशन बढ़ रही है हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो सेकुलर ट्रेंड जो है हमेशा ही लॉन्ग पीरियड के लिए देखा जाता है, कि जैसे लंबे समय में किसी चीज़ में तब्दीली आती है. शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम ट्रेंड जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जब किसी वेरिएबल का देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड. नेक्स्ट है सीजनल वेरिएशंस. एज द नेम सुजेस्ट, सीजन से जिस हमारी डिमांड में जैसे चेंज आ जाती है, जैसे समर्स हैं, ठीक है, समर्स में किन चीज़ों की, कॉटन के क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाएगी. तो दैट मीन्स जब हमारे डाटा में या जब हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू सीजन, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में जो गर्मी की पसंदीदा हमारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. सिमिलरली सर्दियों में वूलन्स की डिमांड बढ़ जाती है, हीटर्स की डिमांड बढ़ जाती है. तो दैट मीन्स कि जब सीजन के अकॉर्डिंगली चीज़ों की डिमांड कम या ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं सीजनल वेरिएशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि हम इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं. जब दिवाली है, फेस्टिवल का टाइम है, तो उस फेस्टिवल से रिलेटेड आइटम्स की डिमांड बढ़ जाती है, दियों की डिमांड बढ़ जाती है, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है. तो सीजनल वेरिएशंस मीन सीजन के अकॉर्डिंगली जब हमारी वेरिएबल्स में चेंज आती है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाइम सीरीज में हम सीजन के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस देखते हैं. देन कम साइक्लिकल वेरिएशंस. जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम किसी भी बिजनेस में या इकोनॉमी की भी हम बात कर लें, तो ये जो वेरिएशंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिकल वेरिएशंस. यानी कि इन वेरिएशंस में क्या है, हम प्रॉस्पेरिटी पे भी हैं. पहले हम एक्सिस पे ले लेते हैं, एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है जी. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी भी हम देखते हैं, इकोनॉमी में हम
रिसेशन भी देखते हैं, ये रिसेशन का टाइम है। और रिसेशन के बाद हम यहाँ जब लो पे आ गए यानी कि हम डिप्रेशन में चले गए, उसके बाद हम रिकवरी पे भी चलते हैं, ये हमारी रिकवरी हो गई। और फिर हम दोबारा से प्रॉस्पेरिटी या बूम की सिचुएशन को रीच करते हैं और फिर दोबारा से ये प्रोसेस को करते हैं। तो जब ये एक साइकिल कंप्लीट होता है फिर दूसरा साइकिल, तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी में क्या आ रही हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। तो यहाँ पे हम जो डाटा स्टडी कर रहे हैं वो क्या शो कर रहा है, टाइम सीरीज डाटा साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को। तो ये हमारी थर्ड टाइप है। लास्ट हमारी टाइप है फोर्थ टाइप, इरेगुलर वेरिएशंस। इरेगुलर वेरिएशंस जैसे कि अभी हमने कोरोना का सामना किया, या अर्थक्वेक आ जाए, या कभी फ्लड आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एकदम से जब चेंजेस आती हैं तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। यानी कि वो वेरिएशंस जो कि इरेगुलर इंटरवल्स पे आती हैं, एक्सीडेंटल कॉजेज़ की वजह से आती हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। यानी कि ये किसी सिस्टमेटिक वे के साथ हैपन नहीं होती। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा दैट इज फ्री हैंड कर्व मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम सीरीज है जिसमें हमारे पास ईयर्स हैं और प्रोडक्शन है। 2015 से लेकर 2023 का हमारा प्रोडक्शन का डाटा है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपल ग्राफ पेपर पे हम सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। जैसे 2015 में हमारे पास है 120 प्रोडक्शन, देन हमारे पास 16 में है 125, 17 में है हमारे पास 133, तो हम अंदाजन यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, हम लगा लेते हैं। 18 पे है हमारी 138, तो यहाँ होएगा पॉइंट। देन 19 पे हमारा है 150, तो सीधा ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये। एंड ऐसे करके हम ये डाटा जो है वो उसको प्लॉट करते जाएंगे। तो ये हमारा डाटा है जो हमारा डाटा प्लॉट होता जाएगा। तो इसी डाटा के ऊपर हम जो है इसमें अपवर्ड्स भी है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड भी है। हमने ये अपवर्ड ट्रेंड जो डाटा है वो लिया है। अगर मान लीजिए ये हमारा जो डाटा है, देखिए अगर हम जब डाटा प्लॉट करते हैं, अगर हमारा ऐसे वेरिएशंस आ जाती हैं, यहाँ तो हमारा एक ट्रेंड में चल रहा है तो हम सीधी ही ट्रेंड जो लाइन है उसको फिट कर सकते हैं। अगर ऐसा केस आ जाए हमारा जो डाटा है प्लॉटिंग के टाइम उसमें वेरिएशंस है, तब भी हम जो है एवरेज के हिसाब से ये एक सीधी लाइन जो है वो, जिसको कि हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, वो खींच सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है तो हमने इंक्रीजिंग ट्रेंड लाइन खींच ली। अगर वेरिएशंस हैं तो हम एवरेज लेके ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा डाटा डिक्रीजिंग है ऐसे, तो हम एक डिक्रीजिंग ट्रेंड लाइन साथ में खींच लेंगे। तो ये हमारा फ्री हैंड कर्व मेथड है। लेकिन इस मेथड में काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि ये मेथड जो है सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। जहाँ पे ये फ्लक्चुएशंस हैं यहाँ पे हम थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रेंड लाइन जो है वो चेंज हो सकती है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमें ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फ्लक्चुएशंस के टाइम हमें ये दिक्कत आ सकती है। तो एक्यूरेसी की कमी है इस मेथड में। ऑल्दो इसकी मेरिट्स भी हैं कि ये बहुत ही सिंपल फ्लेक्सिबल मेथड है जिसमें कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं यूज़ हो रहा, और फोरकास्टिंग के लिए मेथड सबसे बेहतर मेथड है। तो हम इस मेथड को जब हमने फोरकास्टिंग करनी है तो इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कि फ्री हैंड कर्व मेथड बोला जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेमी एवरेज मेथड। जैसे कि नाम ही सुजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हम एवरेजेस निकालेंगे अपने टाइम सीरीज में। तो अगर हमारे पास ईयर्स और प्रोडक्शन दे रखी है और यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है ये इवन सीरीज है, इवन और ऑड सीरीज में हमारा डिफरेंट मेथड होगा, इवन के केस में डिफरेंट। तो जब इवन सीरीज दे रखी है हम क्या करेंगे, सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये भी 4 ईयर्स की प्रोडक्शन है, ये नेक्स्ट 4 ईयर्स की प्रोडक्शन है। अब हम क्या करेंगे कि इनकी एवरेजेस निकाल देंगे, यानी कि इनका टोटल, जैसे इसका टोटल हो गया 1748,
इसका टोटल आ गया हमारे पास 1942। तो ये x1 हमारी पहली एवरेज निकल जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास 1748, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास ये आ गया 437। देन 1942 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ गया 485.5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो एवरेजेस आ गई। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने पहले ग्राफ पे डाटा प्लॉट किया था, यहाँ पे भी हम एक्स एक्सिस में ईयर्स और वाई एक्सिस में अपनी प्रोडक्शन को लेंगे और जो पॉइंट्स है हमारे प्लॉट करेंगे नॉर्मली जैसे करते हैं। लेकिन हमने यहाँ ध्यान क्या देना है कि जहाँ पे हमारी फर्स्ट एवरेज आई है वो वाला पॉइंट और जहाँ पे हमारी सेकंड एवरेज आई है वो वाला पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हुए उनके बीच में से जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसको खींचेंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है विद द हेल्प ऑफ सेमी एवरेज मेथड, हमने ये ट्रेंड लाइन खींची है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है इवन सीरीज के लिए हमने खींची है। तो ये है हमारा सेमी एवरेज मेथड इन द केस ऑफ इवन सीरीज। ऑड सीरीज के केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ये एक 23 ईयर का भी डाटा दे रखा है, मान लीजिए 515 है उसमें प्रोडक्शन। तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर की 4 ले लेंगे और नीचे की 4 वैल्यूज ले लेंगे और जो सेंटर की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है। ये ओमिटेड वैल्यू होगी और अगेन फिर वही मेथड, यहाँ पे भी एवरेज निकल जाएगी, यहाँ पे भी एवरेज निकल जाएगी और सिमिलरली हम जो ट्रेंड को प्लॉट करते हुए, सारे डाटा को प्लॉट करते हुए जो एवरेजेस की पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट करते हुए उसके बीच में से ट्रेंड लाइन को खींच देंगे। तो इस तरह से जब हमारी सीरीज जो है इवन ना होते हुए ऑड होएगी तो हम सेंटर वाली वैल्यू को ओमिट कर देंगे कैलकुलेशन के पर्पस से। तो ये मेथड के बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि ये एक इजी मेथड है, इसमें बाइसेस नहीं है और ये जहाँ इसमें जो ट्रेंड हमने लाइन निकाली है वो बिल्कुल सर्टन लाइन होती है, लेस टाइम और एफर्ट इन्वॉल्व होता है इसमें ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए। लेकिन ये भी डीमेरिट से बच के नहीं है ये मेथड। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज इसको इफेक्ट कर सकती हैं, इसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को भी कंसिडर नहीं किया गया और कुछ अजम्पशंस के बेस पे है, यानी कि हमें यहाँ पे एक वैल्यू को ओमिट भी करते हैं, मे बी वो वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो सकती है। अब हम थर्ड मेथड की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ मूविंग एवरेज मेथड। तो मूविंग एवरेज मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस मेथड में हम क्या करते हैं कि 3, 4, 5, 7 ऐसे हम डिफरेंसेस के साथ मूविंग एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 3 ईयरली लेना चाह रहे हैं, 4 ईयरली लेना चाह रहे हैं, 5 ईयरली या 7 ईयरली, कि जब हमें लगता है कि मोस्टली जो ट्रेंड है या वेरिएशंस आती हैं हमारी 3 ईयर्स में आ रही हैं या 4 में या 5 में, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इसको लेते हैं। तो दैट मीन्स इसको हम ऑड पीरियड्स के लिए और इवन पीरियड दोनों के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। तो ऑड पीरियड मूविंग एवरेज के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले रखी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट ईयर जो की प्रोडक्शन है उसको छोड़ के बाकी के आगे के 3 सालों को ऐड करते जाते हैं। जैसे हमने 200, 300 यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर का जस्ट हमने राइटिंग के लिए छोड़ा है, यानी कि सेकंड ईयर के सामने हम 100, 200, 300 इन तीनों को ऐड करके हम सेकंड वैल्यू के आगे लिख देंगे इसका टोटल 600। देन हम 100 को छोड़ देंगे, देन 200, 300, 400 इसको ऐड करके ये आगे की वैल्यू के आगे लिख देंगे 900। देन इन दोनों को छोड़ के देन 300, 400 एंड 500, देन हमारा क्या आ गया 1200 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट वाली फिर खाली रह जाएगी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी एवरेज, यानी कि ये 3 ईयरली है तो हर एक टोटल को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे। 600 डिवाइडेड बाय 3 2, सिमिलरली 300, 400 एंड 500। ये जस्ट मैंने एक सिंपल सी एग्जाम्पल ली है, होता ऐसे नहीं है क्योंकि ये सारा इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ईजी वे से मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिए कि कैसे हम करते हैं। तो वंस अगेन मैं आपको बताती हूँ, ये प्रोडक्शन दे रखी है तो हम क्या करेंगे,
पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, तीनों को ऐड करेंगे और इस टोटल को किसके सामने लिखेंगे, सेकंड वैल्यू के आगे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देंगे। देन फिर एक ये ऊपर वाली की वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट तीन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 600 के आगे नेक्स्ट लिख देंगे एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। और देन इन वैल्यूज़ को अगर 3 ईयरली है तो 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, 5 ईयरली है तो 5 के साथ करेंगे, 7 ईयरली है तो 7 के साथ करेंगे। तो सब में जो है हमने वैल्यू, ये जो टर्म्स है कैसे छोड़नी है वो डिपेंड करता है कि आप ऑड पीरियड मूविंग एवरेज ले रहे हो या इवन। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इवन पीरियड। नेक्स्ट मेथड है अब हमारा इवन पीरियड मूविंग एवरेज मेथड। इसमें अब हम क्या करेंगे कि इवन ईयर्स जो है यानी कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज जो है हम उसको स्टडी करेंगे। इसमें भी हमारे पास दो मेथड हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को देखने जा रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये डाटा दे रखा है, 1990 से लेकर 1999 तक का डाटा दे रखा है और ये हमारे पास सेल्स दे रखी है। ठीक है जी। इसमें अब हम क्या करेंगे कि पहले 4 साल की सेल को ऐड करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने इस 4 साल का जो 4 ईयरली मूविंग टोटल है, ये जो हमारा 4 ईयरली मूविंग टोटल है, इसको हमने लिखना कहाँ पे है। तो 4 ईयरली है तो आप पहली दो टर्म्स को छोड़ के इसको सेकंड और थर्ड की टर्म के बीच में सेंटर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। 4 ईयरली मूविंग टोटल को ये देखिए क्या किया हमने, 7, 8, 9, 10, ये 4 साल का डाटा है, इसको ऐड कर लिया। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, इसका क्या मतलब है कि हमने 91 और 92 ईयर दूसरे और तीसरे साल के बीच में सामने इनको ऐड करके रख देना है। ठीक है जी। उसके बाद हमने 7 को छोड़ देना है, अगली 4 वैल्यूज़ को ले लेना है और उसको 92 और 93 के बीच में लिख देना है। यानी कि ये सारा डाटा जो है ईयर्स के बीच में आएगा। ये देखो 91 92 के बीच में ये आ गया 35, 92 93 के में आ गया 38 अगले साल का। फिर हमने एक साल और छोड़ दिया, फिर किस किस को ऐड किया, 9 11 10 12, 9 11 10 12, तो ये आ गया 42। इसको हमने 93 94 के बीच में लिख दिया एंड सो ऑन। और जहाँ हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए यहाँ तक आते आते ये देखिए 8 + 6 + 5 + 10, ये फिनिश हो गया। यहाँ तक आते आते इसको यहाँ लिख दिया। तो अभी नीचे और 2 साल हैं तो इनको हमने ऐसे ही खाली छोड़ दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद उसके बाद हमने 4 ईयर मूविंग टोटल निकालने के बाद हमने करना है 2 पीरियड मूविंग टोटल ऑफ 4 ईयरली मूविंग टोटल। यानी कि हमने क्या करना है, इन 2 सालों का 35 और 38 इसको ऐड कर लिया। अब ये दोनों किसके बीच में आते हैं, इनके बीच में क्या आ रहा है, 92। दैट मीन्स हमने ये किसके आगे लिख दिया, 92 के, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम आगे का करेंगे। अब आगे देख लीजिए हमारे पास क्या आ रहा है, 35 + 38 हमारा 73 आ गया। उसके बाद 38 + 42 हमारा क्या आ रहा है, 80। तो ये 80 हम किसके आगे लिखेंगे, 93 के। ये देखिए इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे लाइन खींच के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 93। फिर इसके बीच में दोनों को ऐड कर लेते हैं, 42 और 41 को। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 83 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम अपने सारी जो कैलकुलेशन है उसको कर लेंगे। सारा जो 2 ईयरली हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 77, देन हमारा आ जाएगा 67, देन हमारा आ जाएगा 60। ठीक है जी। तो ये हमारा सारा हो गया। अब हमने क्या निकालनी है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज सेंटर्ड। तो यानी कि ये सेंटर्ड हो गई। अब हम इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, हर एक को 4 के साथ डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अपनी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो क्या आ जाएंगी, वो इसके सामने ही आएंगी, अब ये चेंज नहीं होंगी। 9.125 एंड फिर हमारे पास आ जाएगी 10, देन हमारे पास आ जाएगी
3, 5 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। क्लियर? तो एक तरह से ये हमारी ट्रेंड की वैल्यूज़ को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास जो दूसरी ग्राफ पे वैल्यूज़ होंगी बीच में, जब हम अपना फाइनल ट्रेंड वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इवन पीरियड मूविंग एवरेज के साथ हमारा मेथड। अब इसमें भी दो मेथड है, ये तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड समझाया ना। अब सेकंड मेथड में क्या है, उसमें क्या करना है, ऐसे ही हमारा प्रोसीजर चलेगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने 35 निकाला है ना, यहीं पे इसकी एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि यहीं पे इसको हम 4 के साथ दूसरे मेथड में डिवाइड कर देंगे। अब आप सोचोगे फिर, अब यहीं पे अगर हमने 4 के साथ डिवाइड कर दिया, इसके बाद ये एवरेजेस आ जाएंगी, फिर इन दोनों की एवरेज, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज आएगी, जो भी वैल्यू आएगी और जहाँ पे जो वैल्यू आएगी, उन दोनों को आपस में 2 के साथ डिवाइड करके यहाँ पे फिर अगेन हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। बस तरीका अलग है, यहाँ पे हमने पहले टोटल निकाल के फिर टोटल का अगेन टोटल किया हमने दो दो वैल्यूज़ को, और फिर हमने एवरेज निकाली। ठीक है, दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, टोटल करने के बाद सीधा एवरेज निकालेंगे, यहाँ पे एवरेज निकाल के फिर एवरेज, दोनों एवरेजेस को आपस में ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करके 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल लेंगे। बस यही डिफरेंस है दोनों मेथड्स में। वैल्यूज़ कैसे निकालनी है ये तो हमने देख लिया, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को प्लॉटिंग भी बताना चाहती हूँ कि अगर नॉर्मल ग्राफ पे आपकी ऐसे 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 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है जी, अगर हमने 3 ईयरली मान लो, यहाँ पे टाइम है, मान लो यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन है, तो अगर ये हमारी आ रही है तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो हमने निकाली है, अगर उनकी वैल्यूज़ को हम प्लॉट करेंगे तो ऐसी कोई आ रही है, तो जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारी ट्रेंड लाइन या ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी, हमारी ट्रेंड वैल्यू की हमारी लाइन जो है वो आ जाएगी। क्लियर? तो दैट मीन्स कि हमने जो हमें ईयरली डाटा सारा दिया है उसमें से हमने 3 ईयरली जो कि ऑड के केस में है, 4 ईयरली जो कि इवन के केस में है, हमने उनको निकाल के यहाँ पे प्लॉट कर देना है। तो प्लॉटिंग का वही ग्राफ पेपर में हम सिंपल जैसे हम करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वैल्यूज़ को प्लॉट करने के बाद हमारे पास हमारी एक ट्रेंड लाइन या ट्रेंड वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट है कि अगर हमने वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो अगर हमें वेट्स दे रखे हैं, जैसे कि हमें कहा है कि 3 ईयरली वेटेड एवरेज जो है विद वेट्स दे रखे हैं, 3 साल के वेट्स दे रखे हैं 1, 4, 1 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये देखिए, ये हमारे पास दे रखे हैं ईयर्स में जो हमारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो ये वैल्यूज़ हमें दे रखी है। अब हमें पता है कि मेथड क्या है हमारा 3 ईयरली मूविंग एवरेज में, हम पहले 3 सालों को ऐड करेंगे और पहले साल को छोड़ के किसके सामने लिखते हैं, हम सेकेंड ईयर की वैल्यू के आगे, जो कि हमने पीछे अभी सीखा था। अब हमने क्या किया, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ, ठीक है, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ, फिर 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ, तो इन सबको आपस में ऐड कर लिया, 2 इंटू 1, 6 इंटू 4, 1 इंटू 1, ये सबको ऐड करके हमारा 3 ईयरली वेटेड मूविंग टोटल कितना आया, 27 एंड सो ऑन। और सिमिलरली हम आगे भी निकालेंगे, जैसे कि 6 को अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, 1 को किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, प्लस 5 को किसके साथ करेंगे, 1, यानी कि उसी सीक्वेंस के साथ 1, 4, 1 इसी सीक्वेंस के साथ करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15। अब 1 को किसके साथ करेंगे, अगेन 1 के साथ, 5 को किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, 3 को किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 24 एंड सो ऑन। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी अगेन 24 एंड 33। उसके बाद अब समेशन, W की समेशन क्या है, 1 + 4 + 1 यानी कि कितनी है, 6, तो ये हमने लिख ली समेशन W की। अब 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ WY अपॉन समेशन ऑफ W, तो ये हमारे पास कितनी है 27/6, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4.5 एंड सो ऑन, 4.5 आ गई, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
0.5 एंड सो ऑन, जो हमारी सारी वैल्यूज़ है हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 5.5 आ जाएगा। तो ये हमारी सारी 3 ईयरली वेटेड मूविंग एवरेज जो है वो निकल गई। तो ये वेट्स के केस में हम ऐसे मूविंग एवरेजेस को निकाल सकते हैं। ये हमने ऑड के केस की एग्जांपल देखी है। सिमिलरली इवन के केस में भी हम ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने 3 मेथड्स जो हैं अपने क्लियर कट कर लिए हैं। फ्री हैंड कर्व मेथड मैंने आपको बताया, सेमी एवरेज मेथड बताया और मूविंग एवरेज मेथड, दोनों ऑड इवन के केस में, और वेटेड मूविंग एवरेज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है, जो बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो डिस्कस करेंगे, जिसको कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।